Okay, so hello students, welcome to this lecture. So in this lecture, we will discuss the solutions of physics part from Master Cadre 2022 exam. We will discuss the solutions with detailed concepts. Okay, so आप भी अपनी notebook साथ लेके बैठिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, so that the new topics, new concepts you can write down and note down in your notebook. Okay, so let's start the discussion. The first question is, in a crystalline solid, the energy band structure for an electron of mass m is given by E is equal to h cut square k 2k minus 3 divided by 2m, this relation. Okay, the effective mass of the electron in the crystal is, effective mass of the electron पूछा है, E के relation given है, easy question है, direct question है, solid state physics से पूछा है. effective mass का formula क्या होता है? direct formula m star is equal to h cut square by d square E by dk square. Here E is given as h cut square by 2m और k को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट विल बी 2k स्क्वायर माइनस 3k. So the first derivative of d with respect to k is h cut square by 2m, it will become 4k minus 3, and the second derivative of e with respect to k is, it will be h cut square by 2m into 4. So now place this value here, m star will be equal to h cut square डिवाइड बाई 4 एच कट स्क्वायर, और ये 2m ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी कैंसल्ड आउट बाई 2. m स्टार इज इक्वल टू m बाई 2. दिस विल बी द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. m स्टार इज इक्वल टू m बाई 2. ओके, सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. दैट इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. m स्टार इज इक्वल टू h कट स्क्वायर divided by d square E by dk square. Okay, let's move to the second question. A particle moves in a circle lying in a plane and centered at the origin. The radial component of its velocity. Direct, easy question, very easy question. एक circle है of radius say r. Particle is moving on this circle and it is centered at origin. So you know, if particle is moving in the circular motion, so tangent to this curve will be given by the velocity. Okay, so velocity component will always be tangential to the path. Okay, so there will be no radial component. Radial component means in the direction of r cap. So there will be no radial component. इसी concept को आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमने differentiation of vector में बोला कि if a curve is representing by r vector, then dr by dt at the location of r is the velocity of the particle at that location in the tangential direction. Okay, so velocity that is given by dr by dt, that is always be tangential to that curve. Okay, so direct answer है, कुछ भी ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है. Answer है 0. The radial component of the velocity is 0. So option B is the correct answer for this. Okay. Let's move to the question number 3. For electrons following two-dimensional Maxwell velocity distribution, the most probable speed and the root mean square speed are given by. Most probable speed पूछी हुई है, root mean square speed पूछी हुई है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी 2D में. मैं आपको 3D और 2D दोनों बता देता हूं. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. सो इन 3D एवरेज V is equal to 8 kt divided by m under the root mean square speed is under the root 3 kt by m, and vp is 2 kt by m. ओके, ये क्या है, ये v एवरेज है, ये v रूट मीन स्क्वायर है, ये v मोस्ट प्रोबेबल है. ठीक है, इसको VMP भी लिख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल है ये. इन 2D एवरेज V इज गिवन बाई KT पाई डिवाइड बाई 2m अंडर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज 2 KT बाई m अंडर द रूट, एंड द मोस्ट प्रोबेबल VP और VMP जो भी आप लिखना चाहें, दैट इज KT बाई m अंडर द रूट. ओके, 3D और 2D दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करके
और इंटीग्रल को सोल्व करके सोल्व करते हैं। तो 3D में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग होता है, 2D में अलग होता है, दोनों को सोल्व करने से वैल्यूज आती हैं। डिटेल लेक्चर में वो आप देख सकते हैं कि कैसे आती हैं, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग 3D और 2D ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी का भी और एनर्जी का भी, दोनों ही। कभी वेलोसिटी पूछ ली जाती है 3D या 2D में, या कभी एनर्जी के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, एवरेज ई स्क्वायर का, उस हिसाब से, ठीक है। सो बी केयरफुल। क्वेश्चन इज फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। Let's move to the question number 4. Question is from the classical mechanics. The moment of inertia of a disk about its diameter. Okay. From the last question you see, in this last question, none of the option is correct. Okay. So this is the correct option. That is why the question is dropped from the official answer key. Okay. So this is the correct answer. In question number 4, the moment of inertia of a disk about its diameter is. डायमीटर के अलोंग पूछा हुआ है। ओके, क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। सो डिस्क इज सिमेट्रिक, सो वी नो IZ is equal to IX plus IY, where IX and IY are the moment of inertia along the diameters. Okay, and as IX and IY, because disk is symmetric, so they will be equal, and IZ will be equal to 2I. IZ will be equal to 2I, and I is nothing but IZ by 2. If you can calculate the value of I, you will find out the moment of inertia about its diameter. So now IZ is the axis perpendicular to the diameter passing through the center. So IZ क्या होता है डिस्क के लिए? IZ is equal to mr square by 2. So I will be mr square by 4. So this is the correct answer. But you see, ये ऑप्शन गिवन नहीं है in terms of m and r. So information missing है, मास नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है, इसलिए इंफॉर्मेशन मिसिंग। अगर यहाँ पे mr square दे देते या इन टर्म्स ऑफ mr square दे देते तो 1/4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन m और r मिसिंग है, इसीलिए 1/4 इज समथिंग लाइक ए वेग ऑप्शन, तो इसीलिए ऑप्शन नहीं गिवन है, दैट इज mr square by 4. ओके, तो डिस्क के केस में इजी सा प्रॉब्लम पूछा था। वैसे तो IX और IY डायमीटर हो गए, IZ इज परपेंडिकुलर टू द IX एंड IY, और यूजिंग द परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव कैलकुलेटेड दिस। ओके, सो ये भी क्वेश्चन ड्रॉप था आपका। Question number 5. Question is from solid state physics. What Einstein temperature for Einstein frequency this? Einstein temperature calculate करना है, Einstein frequency आपको given है। Very easy question. Direct आपका formula है that Einstein temperature theta E is given by h nu by k. h nu by k. So it will be 6.6 into 10 raised power minus 34 into mu. Mu is in the hertz, so 9 into 10 raised power 11 divided by k, which is the Boltzmann constant, 1.38 into 10 raised power minus 23. So after solving it, it will be nearly 43 Kelvin. Okay, so option C is the correct answer to this. Option C. Okay. इसको सोल्व करना है डायरेक्ट, लेकिन हाँ, एग्जाम कंडीशन में कैलकुलेशन थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वही इस क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला डायरेक्ट है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो 43K इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज क्वेश्चन 6. A point charge Q of mass m is kept at a distance d below the grounded infinite conducting sheet which lies in the xy plane. What is the value of d for which the charge remains stationary? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक है इमेज चार्ज प्रॉब्लम। इमेज चार्ज प्रॉब्लम। ओके, इमेज चार्ज प्रॉब्लम होती क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझने में हमें आसानी रहेगी। इमेज चार्ज प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक पॉइंट चार्ज Q है,
एक पॉइंट चार्ज Q and a grounded infinite conducting sheet is there. Okay, so let's draw the arrangement first. से ये एक जनरल इमेज चार्ज प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको अगर समझ लेंगे हम देन वी कैन इजीली डिस्कस दिस. ओके, सो इन दिस केस ए चार्ज Q, जनरल इमेज चार्ज की बात मैं कर रहा हूं, एक चार्ज Q प्लेस होता है एंड एक कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट is placed at the origin. Okay, so this is grounded infinite conducting sheet. Now see, होता क्या है कि हमें इस अरेंजमेंट की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं. Q और कंडक्टिंग शीट, अगर अकेला चार्ज होता तो हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना जानते हैं, लेकिन इस कंडक्टिंग शीट की वजह से देयर विल बी द कॉम्प्लिकेशंस. क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग शीट है, इस चार्ज Q की वजह से यहां पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एंड द फील्ड अबव Z ग्रेटर देन जीरो रीजन, Z लेस देन जीरो रीजन, अगर ये हमारा XYZ अगर है तो, ठीक है. नाउ टू सोल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम हमें नहीं पता होता है कि कंडक्टिंग शीट कैसा बिहेव करेगी. सो वी टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिकनेस थ्योरम, और यूनिकनेस थ्योरम हमें कहती है कि अगर सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन सेम है सो इन दैट पर्टिकुलर रीजन पोटेंशियल विल रिमेन यूनिक. ये हमें गारंटी देती है. तो कहती है कि चाहे आप किसी भी अरेंजमेंट से निकालो, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर रीजन में बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं सो दैट अरेंजमेंट विल बी रिप्लेसेबल विद द न्यू अरेंजमेंट अनटिल अनलेस द पोटेंशियल इज सेम. और ये बात हमें यूनिकनेस थ्योरम ने बता ही दी है कि अगर बाउंड्री कंडीशन सेम है, जस्टिफाई हो रही है, तो पोटेंशियल उस रीजन का यूनिक होगा. तो इसी का यूज करके हम इस पॉइंट चार्ज प्लस कंडक्टिंग शीट की प्रॉब्लम को 2 पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2 पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं. और 2 पॉइंट चार्ज को सोल्व करना तो बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे कूलम्ब्स लॉ लगाना हो, है ना. बस यही कॉन्सेप्ट है. जब भी आपको इमेज चार्ज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट दिखे तो सबसे पहले उस चार्ज और कंडक्टिंग शीट के प्रॉब्लम, वो कंडक्टिंग स्फीयर भी होता है, वो हम डिटेल लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो कि जब कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो क्या होगा, चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा, कहां पर होगा. लेकिन अभी कंडक्टिंग शीट और चार्ज तक को पे हम रेस्ट्रिक्ट रहते हैं. तो इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज आवर Z एक्सिस. तो अगर वो चार्ज Q था यहां पर, ये आपका ओरिजिन था, तो द होल कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय ये चार्ज माइनस Q हेयर. अगर ये डिस्टेंस D थी तो ये डिस्टेंस माइनस D होगी. ठीक है. अब इन दोनों की वजह से आप फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो, और हर चार्ज, उस जो आपका रेफरेंस चार्ज Q था, ये था ना ओरिजिनल चार्ज, ये माइनस Q था. देखो ये माइनस Q एक्चुअल में है नहीं, ये माइनस Q जो है ये एक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया गया हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. ठीक है. तो इस कॉन्फ़िगरेशन को, जो पॉइंट चार्ज और कंडक्टिंग शीट की प्रॉब्लम थी, उसको 2 पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम से रिप्लेस करके सिर्फ सोल्व किया गया है. अब ये हमारा रेफरेंस चार्ज होता था तब. अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m इज कैप्ड एट ए डिस्टेंस d बिलो द ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट. इसके नीचे रखा हुआ, ऊपर नहीं है. तो उस केस में क्या होगा? प्रेजेंट केस क्या है? प्रेजेंट केस ऐसा है जो न्यूमेरिकल गिवन है. इफ दिस इज Z एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, तो जो Q चार्ज है वो यहां है, ये हमारा रेफरेंस वाला चार्ज है जो कि गिवन है. डिस्टेंस कोई भी मान लो, माइनस D बोल दो, बिलो द ओरिजिन. और यहां पे कंडक्टिंग शीट है, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो यहां पे एक अपोजिट चार्ज माइनस Q D डिस्टेंस पे प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना है. ये हमारा रेफरेंस है. अब देखो कह रहा है कि चार्ज Q जो वो स्टेशनरी रहना चाहिए. तो क्यों स्टेशनरी क्यों नहीं रहेगा? पहले तो ये सोचो, इस Q के ऊपर दिस Q विल अप्लाई ए फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा.
जो कि कंडक्टिंग शीट है वो क्या करेगी, इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी। कंडक्टर के लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया है कि कंडक्टर के पास कोई क्यू रखा होगा तो अट्रैक्ट होगा, वही हो रहा है। और दूसरी तरफ mg, अगर ये कोई पार्टिकल ऑफ मास m है तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसको नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेगा, इसको नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेगा। तो स्टेशनरी कब रहेगा, जब दोनों फोर्स जो हैं वो बैलेंस आउट होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, दैट इज क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस दोनों के बीच की है 2d, तो दैट विल बी 2d स्क्वायर। और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, दैट इज mg। ये दोनों बैलेंस आउट हो गए तो पार्टिकल जो है वो वहीं की वहीं रह गया। तो इट मींस इसको सोल्व करो, हमें d निकालना है, तो क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4d स्क्वायर इज इक्वल टू mg। हमें d की वैल्यू चाहिए तो d स्क्वायर को इधर रखेंगे, इट विल बी क्यू स्क्वायर ओवर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर, सॉरी d स्क्वायर नहीं, d स्क्वायर उधर चला mg, m इंटू g। तो d की वैल्यू क्या आ गई देखो, d विल बी क्यू स्क्वायर का अंडर रूट क्यू और 16 का 4 बाहर आ गया, पाई एप्सिलॉन नॉट mg। d इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ओके, तो दिस इज द आंसर विच इज इन ऑप्शन बी। आई थिंक ऑप्शन बी में यह ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन आसान है, ये टाइम इसलिए लगा है कि मैंने आपको इमेज चार्ज प्रॉब्लम क्या होती है वो बताया है, डायरेक्ट इसको ऐसे रिप्लेस करके नहीं दिखाया। एक्चुअल में जो जनरल प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि चार्ज क्यू इज अबव द शीट और वहां से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन और दूसरा इसको 2 पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम इसकी ये कन्वर्ट हो जाती है और इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तब हमारा रेफरेंस चार्ज ये था, लेकिन प्रेजेंट केस में क्या था कि शीट के नीचे चार्ज क्यू था, तो ये हमारा रेफरेंस चार्ज है और इसके बदले इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पे। यही इमेज चार्ज की एक कंडीशन है। ये कंडीशन सिर्फ तब है जब कंडक्टिंग शीट रखी हो। कंडक्टिंग स्फेयर में ये चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड भी अलग होता है और ये डिस्टेंस डी भी अलग होती है। तो कभी अगर चार्ज क्यू रखा हो किसी कंडक्टिंग स्फेयर के पास में, तो ऐसे आंख बंद करके मत कर देना कि सर इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पे माइनस क्यू और माइनस डी पे हमने चार्ज रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कंडक्टिंग के केस, स्फेयर का केस हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ, वो आप देख सकते हो, वहां पे मैग्नीट्यूड भी अलग होगा और डिस्टेंस भी अलग होगी। इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के केस में मैग्नीट्यूड चार्ज जो इंड्यूस होता है उसका अपोजिट और डिस्टेंस भी उसके अपोजिट, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। और यूनिकनेस थ्योरम हमें ये गारंटी करती है कि पोटेंशियल विल रिमेन यूनिक, और उसका यूज करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी इमेज चार्ज का प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट उसको 2 पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करिए और उसके बाद देखिए क्या पूछा है। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आपने जैसे ही ये रिप्लेस किया, रिप्लेस करते आपको पता चला कि इसके ऊपर 2 फोर्स लगेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों को बैलेंस आउट कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A satellite moves around a planet in a circular orbit at a distance r from its center. The time period of revolution of the satellite is t. If the same satellite is taken to an orbit of radius 4r around the same planet, the time period would be. Classical mechanics का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला से पूछा गया है, that is t square is directly proportional to r cube. T square is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से पूछा गया है। सो डिस्टेंस इज आर व्हेन द टाइम पीरियड इज टी एंड द डिस्टेंस इज 4r, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड डायरेक्टली। सो इट विल बी आर क्यूब इज इक्वल टू सम टी क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन दोनों ही केसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैंसिल हो जाएगा, मीन्स जो भी कांस्टेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 4r क्यूब इक्वल टू से जो T2 है वो मिसिंग है हमारा, फॉर एग्जांपल T2 मान लो, तो दैट विल बी T2 क्यूब। ओके, यहां पे गलती नहीं करनी, कभी 4r क्यूब कर दो, नहीं, 4r होल क्यूब होगा। सो नाउ यू कैन डिवाइड, सो इट विल बी 4r क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वेयर है ना, ये टी स्क्वेयर, सो T2 स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर। सो आर क्यूब से आर क्यूब चला जाएगा ऊपर वाला, एंड इट विल बी 64 इज इक्वल टू T2 स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर, एंड T2
will be equal to 64t square under the root it will be 8t. तो t2 will be 8t. सिंपल, एक ही फॉर्मूला था दैट t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. इससे आपका सोल्व हो रहा है. तो 8t, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए 8t वो यहां से आएगा. ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है. अगर क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक हमने पढ़ा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल. देखो, फ्री पार्टिकल का पूछा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फ्री पार्टिकल का पूछा है. फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा उसमें इमेजिनरी पार्ट आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, साइन और कोसाइन की टर्म्स आती हैं. तो पार्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों एक ही तरह के हैं या एक दूसरे के सुपर पोजिशन है. सिर्फ ऑप्शन ए एक मात्र ऐसा है जो कि रियल में गिवन है. तो यहाँ पे साइन और कोसाइन का कोई भी फंक्शन गिवन नहीं है. तो ऑप्शन ए ही है जो कि स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन वैलिड नहीं करता है. तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन ए है. ठीक है, क्योंकि फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है दैट विल कंटेन साइन एंड कोसाइन टर्म्स एंड एक्सपोनेंशियल इन द इमेजिनरी पार्ट. सो ऑप्शन ए इज ओनली रियल. तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा गया. ठीक है. So the next question is from the atomic and molecular physics, the angle between L and S of the atomic state 2d 5 by 2 is 2d 5 by 2 is. देखो 2d 5 by 2 स्टेट आपको गिवन है. तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पहले देखो 2s plus 1 lj, ये एक जनरल नोटेशन है. तो यहाँ पे 2s plus 1 की वैल्यू क्या है? 2 है. तो 2s इज नथिंग बट 1 एंड s इज इक्वल टू 1 by 2. तो s की वैल्यू तो 1 by 2 है. l की वैल्यू क्या है? देखो s p d f ऐसा होता है. l 0 1 2 3, तो l की वैल्यू है 2, l इज 2 एंड j इज एज इट इज 5 by 2. j कुछ भी नहीं होता, l प्लस एस, l प्लस एस और l माइनस एस. तो 2 प्लस हाफ 5 by 2 एंड 2 माइनस हाफ इज 3 by 2. तो j l प्लस एस से आया हुआ है. l s और j की वैल्यूज हमें पता लग गई है. नाउ l, देखो यहाँ पे एंगल पूछा है l और s के बीच में. आपसे s और j के बीच में भी पूछ सकता है या j और l के बीच में पूछ सकता है. एक ही फॉर्मूला है इस चीज का, दैट इज j वेक्टर इज इक्वल टू l वेक्टर प्लस s वेक्टर. वेरी बेसिक फ्रॉम द वेक्टर मॉडल ऑफ एटम से पूछा गया. तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो j स्क्वेयर इज इक्वल टू l स्क्वेयर प्लस s स्क्वेयर प्लस 2l वेक्टर डॉट s वेक्टर. तो j स्क्वेयर इज इक्वल टू l स्क्वेयर प्लस s स्क्वेयर प्लस 2l इंटू l प्लस 1 h कट मीन्स l मैग्नीट्यूड इंटू s प्लस 1 h कट s मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा बिटवीन l एंड s. ये थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है. तो कोस थीटा इज j स्क्वेयर क्या हो जाएगा? j इज इक्वल टू j इंटू j प्लस 1 h कट स्क्वेयर माइनस l इंटू l प्लस 1 h कट स्क्वेयर माइनस s इंटू s प्लस 1 h कट स्क्वेयर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ l इंटू l प्लस 1 एंड s इंटू s प्लस 1, और दोनों का जो h कट है वो h कट स्क्वेयर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका कोस थीटा का. देखो यहाँ पे अगर एल एस पूछा हुआ है, एल एस का एंगल पूछा तो इसको रख लो. अगर अदरवाइज मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा होता कि जे और एल का, तो आप क्या लिखते? जे इज इक्वल टू एल प्लस एस और एस इज इक्वल टू जे माइनस एल. अब इसको सोल्व कर लेते तो अब जो कोस थीटा बनता वो जे एल का आ जाता, बाकी फॉर्मूला जो मॉडिफाई हो जाता. तो बस इसी फॉर्मूला से आपको तीनों के एंगल कैलकुलेट होंगे आपस में. यहाँ पे एल और एस का सिंपल पूछा हुआ था, यहाँ पे अब वैल्यू लगाएंगे. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. So cos theta j is 5 by 2, so 5 by 2 into 7 by 2 minus L, that is 2 into L plus 1 3 minus S, that is 1 by 2 and 3 by 2, and divide by twice of root 2 into 3 and S into S plus 1, that is 1 by 2 into 3 by 2. देखो
ऊपर से h कट स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से h कट स्क्वायर कॉमन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 35/4 माइनस 6 माइनस 3/4 एंड डिवाइड बाई √6 एंड इट विल बी √3 डिवाइड बाई, ये 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। तो इट विल बी 35/4 माइनस 24/4 माइनस 3/4, है ना, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर लिया कंसिस्टेंसी लाने के लिए, एंड इट विल बी √18। तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 24 11 माइनस 3 दैट विल बी 8/4 इंटू √18, दैट विल बी 2/√18, और √18 को आप लिख सकते हो दैट इज 2 इंटू 3√2। दिस विल बी योर आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3√2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन बी। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, देखो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वही है कि आपको कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में आपका टाइम थोड़ा सा जा सकता है और आप कोई गलती कर सकते हो, वही एक सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ एरर है कि आपसे वो गलती हो जाए। अदरवाइज ये वेक्टर मॉडल ऑफ एटम का डायरेक्ट एक ही है कि एल और एस वेक्टर मिलके जे बनाते हैं। एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड जे इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द वेक्टर। और इसी को सोल्व करके, और ये बात ध्यान रखिए कि इसी फॉर्मूला से आप लिख सकते हो कि एस इज इक्वल टू जे माइनस एल, तो यहाँ से जे और एल का एंगल आ जाएगा, और सिमिलरली और एस और जे का चाहिए तो एल विल बी जे माइनस एस। इसको आप सोल्व कर लोगे इसी तरीके से तो एंगल बिटवीन जे और एस आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन चांसेस हैं कि इस बार घुमा के कोई आपको एल और जे के बीच में पूछ ले, एस और जे के बीच में पूछ ले, तो बी केयरफुल, द सेम फॉर्मूला विल अप्लाई, बस यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स में मॉडिफिकेशन हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज from the nuclear and the particle physics. Radius of a nucleus of mass number 27. Very easy question. Direct R equal to R naught a raised power 1/3. R is equal to R naught is 1.2 Fermi into a is 27 raised power 1/3. So it will be 1.2, 1 Fermi में होता है 10 raised power minus 15 meter into 3. So it will be 3.6 into 10 raised power minus 15 meter. So option A is the correct option. सब्जेक्ट है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस, जहाँ पे न्यूक्लियस के साइज, रेडियस, मास, डेंसिटी इनकी बात की जाती है। वहाँ से डायरेक्ट सबसे इजी क्वेश्चन अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में हो सकता है आई थिंक तो यही होगा जिसमें पेन चलाने की जरूरत पड़े। तो R इक्वल टू R नोट ए रेज पावर 1/3 और R नोट की वैल्यू जनरली 1.2 फर्मी होती है। सो ये हम लिख सकते हैं। कई बार R नोट की वैल्यू गिवन भी होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस का शेप चेंज होता है तो R नोट की वैल्यू भी चेंज होती है, लेकिन बेसिक एग्जाम्स में ऐसी बात नहीं पूछी जाएगी कि आपसे शेप चेंज करा के डिफॉर्मेशन का फैक्टर ला के आपको R नोट बोलना पड़े। तो R नोट इज या तो गिवन होगा या फिर 1.2 फर्मी इज द स्टैंडर्ड वन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this question is again from the electricity and magnetism electromagnetic theory, and see the question is from the boundary condition problems. Question is from boundary conditions. देखो वैसे तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में टेक्निकली कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ना तो आपको इंटरफेस दिया हुआ है कि 21 इंटरफेस कौन सी इंटरफेस है, वो कौन से प्लेन के पैरेलल है, इंटरफेस XY में है कि YZ में है कि XZ में है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सभी मिसिंग है इसमें, लेकिन ऑप्शन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चारों ऑप्शंस में A, B, C और D में X Y कैप और J कैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जो इंटरफेस है वो XY के पैरेलल है। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो E की जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो कहाँ से आती है,
कि E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल होता है और D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर होता है जब सरफेस पे कोई भी फ्री चार्ज गिवन ना हो। तो ये दो कंपोनेंट, दो इक्वेशंस मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकती हैं। ठीक है, अब आपसे एक रीजन में देखो, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ थोड़ा सा आपके समझने के लिए कि कैसी होगी प्रॉब्लम, कैसी दिखेगी। तो से पर मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने इन क्वेश्चन में टेक्निकली इंफॉर्मेशन सही नहीं है कि इंटरफेस किधर है किधर नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जेड एक्सिस, तो ये रीजन जेड ग्रेटर देन जीरो हो गया, ये रीजन जेड लेस देन जीरो हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि जेड लेस देन जीरो रीजन की परमिटिविटी है एप्सिलॉन 1 इक्वल टू 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है E1 इज इक्वल टू -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये x है और ये y एक्सिस है। आपसे पूछा है कि z ग्रेटर देन जीरो रीजन में E2 की वैल्यू अगर 6.5 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये है क्वेश्चन एक्चुअल में ये। लेकिन यहाँ ना तो इंटरफेस के बारे में गिवन है ना फिगर के बारे में गिवन है, तो ये टेक्निकल इशू तो है, बट फिर भी क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना है तो इसलिए हम फिर अपना जो बैकएंड का जो सॉल्यूशन है वही यूज करेंगे कि भाई ऑप्शन देखो, एलिमिनेशन देखो। तो ऑप्शन से पता लग रहा है कि एक्स और वाई कंपोनेंट सेम है, तो इंटरफेस एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। तो एक्स वाई प्लेन में इंटरफेस है तो क्या होता है, फॉर्मूला ये है कि E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल। इंटरफेस के पैरेलल कंपोनेंट्स हमेशा दोनों रीजन्स में बराबर होते हैं और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती, डिसकंटिन्यूअस होती है। तो इसलिए D1 डिस्प्लेसमेंट से हम कैलकुलेट करते हैं, जहां पे सिग्मा एफ को जीरो मान लिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। ये इक्वेशन यहाँ से उठती है, ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से बिल्ड हुई है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट दिया है, ना कोई फ्री चार्ज की इन्फॉर्मेशन है ना कुछ है। सो एनीवे वो हम गैस करते हैं। तो D1 परपेंडिकुलर D2 परपेंडिकुलर है। अब D1 का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर। तो पैरेलल कंपोनेंट तो बराबर है, मतलब एक्स वाई में अगर इंटरफेस है तो एक्स वाई कंपोनेंट तो बराबर होंगे E2 के। तो E2 का वाई कैप और एक्स कैप तो सेम होगा, लेकिन बात आएगी जेड कैप, क्योंकि जेड कैप परपेंडिकुलर है इंटरफेस के, तो जेड कैप कैसे चेंज होगा। मैं E2 का परपेंडिकुलर चाहिए, तो E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2। तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 और यहां पे है -2, E1 परपेंडिकुलर का -2 है ये कंपोनेंट एंड एप्सिलॉन 2 इज 6.5। तो E2 परपेंडिकुलर है -4/6.5। अब देखो E2 परपेंडिकुलर को कैसे लिखेंगे, E2 परपेंडिकुलर का पैरेलल कंपोनेंट तो एज इट इज लिखे जाएंगे, -3i कैप प्लस 4j कैप, माइनस होना तो प्लस ही था, लेकिन E2 परपेंडिकुलर क्या आया है, -4/6.5 k कैप। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, या तो आप टेक्निकली पूरी इन्फॉर्मेशन दो तब पता चले कि क्या है। अब ना तो इन्होंने फ्री चार्ज इन्फॉर्मेशन दी, ना इंटरफेस की प्रॉब्लम दी। इवन CSIR नेट गेट जहां भी ये प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वहां पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि इंटरफेस ऐसे रखी है और ये इसके पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर है, तो आपको पता लग जाता है। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें अज्यूम करके, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, पैरेलल कंपोनेंट E के और परपेंडिकुलर कंपोनेंट D के बराबर होते हैं। तो पैरेलल से डायरेक्ट हो गए और D1 को इससे यूज कर लिया एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन है बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is from the thermodynamics and statistical mechanics. An ideal diatomic gas is expanded adiabatically from an initial volume V0 to 4V0. V0 to initial volume V0 है, वहां से 4V0 पे expand कर गई है. During this process, the temperature changes from T0 to T. The ratio of T by T0. Very easy question. आपको पता है in the adiabatic process
एक जनरल फॉर्मूला होता है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर पी और वी में क्वेश्चन गिवन होता तो वहां से निकाल लेते। हमें गिवन है टी और वी में, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से वी कैन रिप्लेस दिस पी इन टर्म्स ऑफ टी बाई वी। तो पी विल बी समथिंग टी बाई वी इंटू एन आर मीन्स, तो यहाँ पे बाकी सब तो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो इट विल बी टी वी और वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कैसे सोल्व करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को? टी वन वी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन। अब यहाँ पे गामा भी हमें निकालना पड़ेगा। गामा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 बाई एफ। एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। So for the diatomic gas, degree of freedom is considered as 5. So it will be 5 plus 2, that will be 7 by 5. तो गामा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 7 by 5। तो T1 is T naught into V naught, 7 by 5 minus 1 equal to T2 is T जो हमें कैलकुलेट करना है, V2 is 4V naught and gamma minus 1 is 7 by 5 minus 1. Okay, so you can calculate T by T naught equal to T naught को इधर लेके जाइए, it will be V naught raised power 7 by 5 minus 1, it will be 2 by 5 and it will be 4 V naught 2 by 5. So T is equal to T naught and V naught से V naught चला जाएगा, it will be 1 by 4 raised power 2 by 5. ओके आपसे रेशियो पूछा है तो टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू, इस स्टेप की जरूरत नहीं थी, मुझे लगा टी की वैल्यू पूछी, तो टी बाई टी नॉट इज 1/4 रेज पावर 2/5। ओके सो 1/4 रेज पावर 2/5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटमैक। ओके तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से जनरली पूछा जाता है कि पीवी गामा, टीवी गामा या वी और टी के रिलेशन में या पी या वी के रिलेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द सॉलिड स्टेट फिजिक्स, वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ट्रिक भी बता देता हूं जब भी आपसे पूछा जाए। देखो, if omega is given to you in terms of a and k raised power s, यहाँ पे s की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4। तो ऐसे केस में जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है t रेज पावर d बाई s प्लस 1, जहां पे d होता है डायमेंशन। d क्या होता है? डायमेंशन। और cv स्पेसिफिक हीट होती है, इसका d बाई dt डायरेक्टली, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी डी बाई एस। ये एस है भाई, डी बाई एस। ओके, इट इज डी बाई एस। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। सो टी डी बाई एस। ओके, और डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर कभी पूछा जाए तो इट विल बी ओमेगा डी बाई एस माइनस 1 अगर ओमेगा की फॉर्म में पूछा जाए, और अगर एनर्जी की फॉर्म में पूछा जाए तो इट विल बी ई रेज पावर डी बाई एस माइनस 1। देखो ये फॉर्मूलाज होते हैं और इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, नो मैटर व्हाट पूछा ही जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूलाज बता दिए हैं। ये फॉर्मूलाज आप ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। डी डायमेंशन है तो डी की वैल्यू है 2 क्योंकि 2D में पूछा हुआ है, और फोनॉन्स का केस है तो फोनॉन्स के लिए ओमेगा होता है ए वी इंटू के, तो के की पावर यहाँ पे 1 होती है, सिंपली वी के। ठीक है, के की पावर 1 है तो इसका मतलब एस की वैल्यू 1 है। इस फॉर्मूला से कंपेयर करके डी की वैल्यू 2 है। आप देखो पूछा क्या है, स्पेसिफिक हीट सी वी, तो दैट विल बी टी डी बाई एस, तो 2 सी वी टी स्क्वेयर। तो ऑप्शन आ गया बी। ऑप्शन क्या आ गया इसका करेक्ट? बी। सिमिलरली अगर 3D में होगा तो क्या होगा, देखो ये 2D का हो गया। अगर 3D केस में पढ़ूं तो क्या होगा, इन 3D केस यू विल सी डायमेंशन D इज 3, तो E तो हो जाएगा T विल बी 3 + 1 4 एंड CV हो जाएगा T क्यूब। ये 3D का केस हो जाएगा, ठीक है, और ये 2D का केस है।
तो हमसे 2D पूछा हुआ था, इसलिए CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला जो थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैट में यूज होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ, लेकिन ये आता कैसे, देखो इसको भी समझते हैं। वैसे तो हमें पता है कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, लेकिन ये आता कैसे है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ठीक है, तो T की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इट विल बी करली U बाई करली S एट कांस्टेंट V, ऐसे लिख सकते हैं, करली S बाई करली U बाई करली S एट कांस्टेंट V। हमें चाहिए 1/T में, तो इट विल बी 1/T, या ऐसा सोच सकते हो कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो T में भी करके देख लो, 1/T में भी करके देख लो, मर्जी आपकी है। क्योंकि लेकिन मैं यहाँ पे क्यों चाहता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए ओमेगा के रूप में, इसलिए मैं 1/T पे जा रहा हूँ। और जो बेसिक लॉ है S एंट्रोपी लॉ, दैट इज SKLN ओमेगा। S इज एंट्रोपी इज ऑलवेज गिवन बाय KLN ओमेगा। ओमेगा इज द नंबर ऑफ फेज और द असेसिबल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं करली U बाई करली S करूंगा तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन करली S बाई करली U कर लूंगा तो ऐसा ही बन जाएगा। देखो, तो इसका मतलब 1/T विल बी रिटन एज करली S बाई करली U एट V, और U इज नथिंग बट द एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है, तो इट इज करली S बाई करली E एट V। ये होता है फॉर्मूला। अब आप देखो, इसको करली S बाई करली E करो तो इट विल बी K एज इट इज, एंड इट विल बी करली बाई करली E ऑफ ln ओमेगा। तो 1/KT इज इक्वल टू करली ऑफ ln ओमेगा बाई करली E। So this is the correct option, that is option D। ये फॉर्मूला आ गया है, तो ये फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है। वैसे बेसिक है, थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो इसको यूज करते हैं। इसी को लिखा जाता है बीटा इज इक्वल टू 1/KT। तो इसको कई बार बीटा के फॉर्म में लिखा होता है, बीटा इज इक्वल टू करली बाई करली E ऑफ ln ओमेगा। ये भी फॉर्मूला देखने को मिल सकता है कहीं पे, और बीटा इज 1/KT, तो यहां से ऐसे होता है ये। ठीक है, यहां से आता है ये फॉर्मूला, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स डायरेक्टली फ्रॉम द वन डायमेंशनल बॉक्स। लेट्स सॉल्व इट। A particle of mass m is confined in the ground state of one-dimensional box extending from x equal to minus 2L to 2L, and the wave function psi x is given as psi naught x cos of pi x upon 4L. The energy eigenvalues corresponding to this state is, देखो वैसे एनर्जी आइगन वैल्यूज वन डायमेंशनल बॉक्स की क्या होती है, n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर अपॉन 2ml स्क्वेयर। ये कब होती है, जब बॉक्स 0 to L विड्थ का होता है। अब यहाँ पे है -2L to 2L, तो जहां जहां L है उसको कितने से रिप्लेस कर दूं, टोटल विड्थ कितनी है 4L, यहाँ पे टोटल विड्थ कितनी थी L, तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, En विल बी, और मीन्स यहाँ पे देखो वेव फंक्शन है उसमें क्या क्या होता है, cos n pi x by L, है ना, cos n pi x by L, तो L तो 4L है यहाँ पे अब, और n क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो n की वैल्यू क्या है 1 है, तो फर्स्ट स्टेट की बात हो रही है, तो E1 विल बी n की जगह पे 1 पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर अपॉन 2m एंड इट विल बी 4L स्क्वेयर, so it will be pi square h cut square, और ये हो जाएगा 16 into 2 that is 32 ml square, pi square h cut square by 32 ml square। ये ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन डी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो 1D बॉक्स हो, 2D बॉक्स हो, 3D बॉक्स हो, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, 2D हो, 3D हो, डायरेक्ट इनके एनर्जी आइगन फंक्शंस, एनर्जी आइगन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है हर एग्जाम में, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें ये 1D 2D 3D
बोक्स एंड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो हमेशा ध्यान होने चाहिए, इनकी एनर्जी और इनके वेव फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ऑप्टिक्स। The area of second half period zone S2 and that of first half period zone S1 is related as। देखो ये कौन से ऑप्टिक्स में किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये फ्रेशनल्स हाफ पीरियड जोन से, फ्रेशनल्स हाफ पीरियड जोन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाफ पीरियड जोन में क्या होता है, वी मेक सर्कल्स बाय कीप हैविंग द सेंटर एट डिस्टेंस d, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं इफेक्ट, और वहाँ से सर्कल हम कैलकुलेट करते हैं, ड्रॉ करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इंटीग्रल्स। ओके, तो जो रेडियस ऑफ द nth सर्कल होती है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि जो ध्यान रखने की चीज़ है, रेडियस ऑफ द nth सर्कल जो होती है, देखो सर्कल ऐसे बनते हैं उसमें ऑन द प्लेन, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, अभी ये सिमेट्रिक नहीं है लेकिन समझने के लिए देखिए। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज सर्कल नंबर 1 2 3 एंड 4, ऐसे आपके सर्कल्स बने हैं। तो रेडियस ऑफ जो nth सर्कल है दैट इज गिवन बाई Rn इज इक्वल टू अंडर द रूट n लैम्डा d। ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है ना, n लैम्डा d, जब d इज ग्रेटर देन लैम्डा होता है तो d इज फार डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन जहां पे सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, d को सेंटर मान के। ठीक है, नाउ ये जो हाफ पीरियड जोन है ये होता क्या है, तो आप लिख सकते हो द एनुलर रीजन बिटवीन nth, द एनुलर रीजन बिटवीन nth एंड n-1th सर्कल is known as half period zone, is known as half period zone। नाउ सी, अगर n की वैल्यू 2 है तो सेकेंड एंड फर्स्ट सर्कल के बीच में जो रीजन बना दैट इज नोन एज द nth हाफ पीरियड जोन, नोन एज द nth मींस उसको हम कहेंगे सेकेंड हाफ पीरियड जोन, उसको क्या कहेंगे हम, सेकेंड हाफ पीरियड जोन। तो n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1 के बीच में ये जो रीजन बना, द एनुलर रीजन बिटवीन दिस, दैट इज आवर सेकेंड हाफ पीरियड जोन। तो 3 और 2 के बीच में बनेगा दैट इज थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। नाउ सी, इनका एरिया कैलकुलेट करना है, तो अगर इसके एरिया में से इसके एरिया में से इसका माइनस करते हैं तो सिर्फ यही बचेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब एरिया ऑफ द nth हाफ पीरियड जोन is pi into Rn square minus pi into Rn minus 1 square, और Rn क्या होता है, Rn आपने कैलकुलेट किया हुआ है n लैम्डा d। ठीक है, अभी मैं एक बार समझा रहा हूं कि ताकि आपको ऐसे रटना ना पड़े, कल को आपसे किसी और उसमें भी पूछा जा सकता है थर्ड या फोर्थ के बीच में क्या है, फोर्थ या फिफ्थ के बीच में क्या है, इसलिए मैं एक जस्टिफिकेशन आपको दे रहा हूं कि कैसे होगा ये। ठीक है, सो ए से A1 विल बी, जब सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो A1 विल बी पाई इंटू लैम्डा डी एंड A2 विल बी पाई इंटू 2 लैम्डा डी। तो जब A2 निकालेंगे तो ये क्या होगा, A2 माइनस A1। एरिया ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन क्या है, A2 माइनस A1, तो इट इज 2 पाई लैम्डा डी माइनस पाई लैम्डा डी, तो इट इज पाई लैम्डा डी, इट इज पाई लैम्डा डी। तो सेकंड हाफ पीरियड जोन, इसको S2 बोला हुआ है ना, तो S2 मान लो। सिमिलरली अगर आप S1 निकालोगे तो S1 तो वही होगा, सिंपली इसका एरिया, तो दैट इज पाई लैम्डा डी। S1 और S2 बराबर हो गए। सिमिलरली आप S3 भी कैलकुलेट करोगे तो भी क्या ही होगा, A3 माइनस A2, तो इट विल बी 3 पाई लैम्डा डी माइनस 2 पाई लैम्डा डी, तो पाई लैम्डा डी। तो सिर्फ
आंसर तो इसका हो गया कि S2 इक्वल टू S1 है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड की ही बात नहीं है। आप लिख सकते हो इनफैक्ट एरिया ऑफ ऑल हाफ पीरियड जोन्स आर इक्वल। एरिया ऑफ ऑल हाफ पीरियड जोन्स, जब भी ऐसा पूछा जाए ऑल हाफ पीरियड जोन्स आर इक्वल, सभी का ही बराबर होता है, ठीक है। और वो आया कहां से, इससे देख सकते हो। अब आप डायरेक्ट आंसर आपको पता चल गया है, S2 इज S1, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, S2 इक्वल टू S1। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। From thermodynamics and the statistical mechanics, the degree of freedom for triatomic gases। देखो ये क्वेश्चन फिर से एक ऐसा ट्रिवियल सी बात, एक वेग सी बात है कि भाई कौन सी ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस ऐसे वाली विच इज द लीनियर वन, या फिर ऐसे वाली विच इज द नॉन लीनियर वन। दोनों ही केसेस में, लीनियर एंड नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होता है। तो ये इनको बताना चाहिए क्वेश्चन में कि नॉन लीनियर का पूछा है कि लीनियर का पूछा है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी पूछेगा ट्राइएटॉमिक तो पहले माइंड में आना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। यहाँ पे इन्होंने वेग सा स्टेटमेंट दे दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेज। तो जनरली क्या होता है, देखो लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल होते हैं एंड द 2 रोटेशनल, तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉन लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल होते हैं एंड 3 ही रोटेशनल होते हैं, तो 6 रोटेशनल होते हैं। सो पहली चीज़ तो इन्होंने ये मेंशन नहीं की कि मॉलिक्यूल कैसा लीनियर है कि नॉन लीनियर है, और दूसरा ये मेंशन नहीं किया किस टेम्परेचर पे आप देख रहे हो। भाई लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है तो रोटेशनल एक्साइट हो जाते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर है तो वाइब्रेशन भी आ जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में एक वेग सी स्टेटमेंट है, बट ऑप्शन इज 6। तो मतलब जो करेक्ट आंसर है दैट इज 6। तो जनरली ऐसा है कि अगर नहीं गिवन है तो नॉन लीनियर के केस का गिवन है, और ये तो फैक्ट है कि जब भी टेम्परेचर गिवन ना हो तो उसको आप रूम टेम्परेचर मान के उसको ट्रांसलेशन और रोटेशनल के रूप में लिख सकते हो। बट ये गिवन होना चाहिए कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। यहाँ पे नॉन लीनियर पूछा है अपने मन में उन्होंने, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6। ओके, if the de Broglie wavelength of an electron is 10 raised power minus 10 meter, then the energy of the electron is, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक क्वेश्चन, बट वही है कि कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। देखो लैम्डा इज गिवन एज 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर, सो लैम्डा इज गिवन एज h अपॉन p, एंड हेयर वी नो हमें चाहिए एनर्जी, तो p को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लैम्डा विल बी h अपॉन पी स्क्वेयर बाई 2m क्या होती है, इज इक्वल टू e, तो p की वैल्यू हो गई अंडर द रूट 2me, अंडर द रूट 2me। So lambda will be equal to this one, so root 2me is equal to h upon lambda, और हमें चाहिए e चूंकि, तो it will be h square over 2m lambda square। ओके, तो यहां से e निकालेंगे, तो e h is the Planck's constant 6.626 into 10 raised power minus 34 square divide by 2 into mass of the electron 9.1 into 10 raised power minus 31 into lambda is given in meter 10 raised power minus 10। तो इसको सोल्व करोगे तो SI यूनिट जूल में आ जाएगा, दैट इज 2.41 into 10 raised power minus 17 जूल। नाउ हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो वी नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised power minus 19 जूल। So E will be equal to 2.41 into 10 raised power minus 17 divided by 1.6 into 10 raised power minus 19.
So it is 1.51 into 10 raised power 2. So it will be 151 electron volt, which is nearly 150 electron volt. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. देखो अब करने में तो ठीक है, सोल्व करने में तो पता है कि फॉर्मूला, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ कंडीशन में इतनी कैलकुलेशन करना, इतने फास्ट कैलकुलेशन करना इज ए टफ टास्क. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इतना आसान नहीं है कि एग्जाम कंडीशन में आपको इतना टाइम मिलेगा. पहले आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, फिर इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करना है, और फिर एक बार और आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है. तो इसके बीच में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आप देखिए आंसर है 100, 250, 300, 150, तो वेरी क्लोज हैं. तो आपका ऑप्शन दूसरा टिक हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज फ्रॉम द न्यूक्लियर एंड द पार्टिकल फिजिक्स वैसे तो, बट इसको जनरल फिजिक्स में भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि एक बेसिक सी बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज वीकेस्ट. मैं आपको इस स्लाइड में इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ बता देता हूं, इनका इंटरेक्शन टाइम बता देता हूं और इनके मीडिएटिंग पार्टिकल भी बता देता हूं. तो वो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है. इस बार इंटरेक्शन वीक पूछी हुई है, अगली बार इनका मैग्नीट्यूड पूछ ले, इंटरेक्शन टाइम पूछ ले. तो देखो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है अगर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या वीक है, या ग्रेविटेशनल है. सो इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10 फॉर दिस, 10 रेज पावर -2, 10 रेज पावर -13 एंड 10 रेज पावर -42. तो यहां से पता चल गया कि वीकेस्ट हमारी ग्रेविटेशनल है यहां पे. ठीक है, आगे चलिए. इंटरेक्शन टाइम, इंटरेक्शन टाइम क्या होगा? 10 रेज पावर -23 सेकेंड, ये सेकेंड में है सारा टाइम. ओके, 10 रेज पावर -16, 10 रेज पावर -10 एंड 10 रेज पावर 16. और एक मीडिएटिंग पार्टिकल, ये भी पूछा जाता है, मीडिएटर पार्टिकल. ओके, तो एक ग्लूऑन है फॉर दिस फोटोन, ईएम रेडिएशन के लिए. यहां पे आप लिख सकते हो W एंड Z इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स, इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स. ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले जो एग्जाम होंगे उनका लेवल कंपैरेटिवली हमेशा ही टफ होता है प्रीवियस से. तो इस बार सिंपली स्ट्रेंथ पूछी गई है, अगली बार कुछ और भी पूछा जा सकता है. ठीक है, और ग्रेविटेशनल के लिए ग्रेविटॉन. ओके, तो ये आपका एक टेबल है जो पार्टिकल फिजिक्स में जब शुरू में पढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं, एंड दिस इज द केस. तो ग्रेविटेशनल इज द करेक्ट आंसर फॉलोइंग इंटरेक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेलमैन-निशिमा फॉर्मूला फॉर क्वार्क्स. और ऑप्शन गिवन है A, B, C, D एंड वेयर Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, I3 इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, B is the baryon number, S is the strangeness number, charm, topness and bottomness quantum numbers. So very easy and direct formula. Gell-Mann-Nishima formula we discuss in the particle physics. So वैसे generally initially it is given as Q is equal to I3 plus 1/2 baryon number plus strangeness number. ये था. बट इसके बाद जैसे जैसे क्वार्क्स जो है वो डिस्कवर होते गए, द जेलमैन-निशिमा फॉर्मूला इज गिवन बाय I3 प्लस 1/2. सभी क्वांटम नंबर्स को ऐड कर दीजिए, B प्लस S प्लस C प्लस T प्लस B. ओके, तो देखिए ऑप्शन ए डायरेक्ट है. अगर यही कॉन्सेप्ट क्लास में जब पढ़ते हैं तो डायरेक्ट यही बताया जाता है, और ये एज इट इज़ क्वेश्चन सिंपल भाषा में पूछा हुआ है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजी मैं कहूँगा कि ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछा गया है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज dq इज इक्वल टू du प्लस dw.
किसी सिस्टम को जो हीट सप्लाई की, उस हीट ने कुछ तो इंटरनल काम किया और कुछ यूटिलाइज हो गई वर्क करने में, du प्लस dw। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को हम कहते हैं एंट्रोपी के रूप में, तो dq इज इक्वल टू tds आ जाता है, दैट इज tds इज इक्वल टू du प्लस dw इज pdv। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की कंबाइंड फॉर्म क्या होगी? सो TDS इज इक्वल टू du प्लस pdv। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। This question is a very straightforward question, direct question from the first line of the lattice potential discussion in the lecture. So, the behavior of the lattice potential is a periodic potential. Is a periodic potential. इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हम ज़्यादा उसके डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बट इट इज़ द periodic potential. लेक्चर में यू कैन सी how we define this the periodic potential. Okay. Now see, this question is very important. Very important. 24. A light source is switched on and off at a constant frequency f. An observer moving with a velocity u with respect to the light source will observe the frequency of switching to b. And 4 options आपको given है. क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रिलेटिविटी, कहीं भी आप डिस्कस इसको कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और द मॉडर्न फिजिक्स। नाउ सी, डॉपलर इफेक्ट की बात हो रही है कि कोई लाइट सोर्स है, वो स्विच ऑन एंड ऑफ हो रहा है एट ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ, और एक ऑब्जर्वर है दैट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी यू विद रिस्पेक्ट टू द लाइट सोर्स। अगेन मैं कहूंगा कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो वेग है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी इसमें इस क्वेश्चन में नहीं है कि आपको यही नहीं पता कि ऑब्जर्वर मूव किधर कर रहा है। डॉपलर इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, पूरा कॉन्सेप्ट तो यही है कि ऑब्जर्वर मूव किधर कर रहा है। क्या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है या उससे अपोजिट मूव कर रहा है? क्या लाइट सोर्स मूव कर रहा है या लाइट सोर्स कांस्टेंट है? यही सब बातें तो डॉपलर इफेक्ट डिफाइन करता है। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि ऑब्जर्वर कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरे आपने ऑप्शंस भी जो आंसर बनाया है वो भी एक ऐसे केस का बनाया है कि जो कि एक नॉर्मल केस नहीं है। देखिए समझिए कि डॉपलर इफेक्ट, आपको पता है डॉपलर इफेक्ट यही बताता है कि अगर कोई सोर्स है उससे कोई फ्रीक्वेंसी एफ जो है या एफ नोट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स द फाइनल फ्रीक्वेंसी विल चेंज। अगर ऑब्जर्वर पास की तरफ आ रहा है तो इट विल इंक्रीज, और अगर दूर की तरफ जा रहा है तो इट विल डिक्रीज। तो डॉपलर इफेक्ट अब साउंड में हम पढ़ते आए हैं, ये लाइट सोर्स का गिवन है। देखो ये बात बड़ी ध्यान से समझना आप लोग, इस साउंड के केस में डॉपलर इफेक्ट गिवन होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस वी बाई सी डिवाइड बाई 1 माइनस कैपिटल वी अपॉन सी। ये डॉपलर इफेक्ट होता है साउंड के केस में, जहां पर सी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड हम मान रहे हैं, स्मॉल वी जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, एंड जो कैपिटल वी है दैट इज स्पीड ऑफ सोर्स, दैट इज स्पीड ऑफ सोर्स। ये फॉर्मूला होता है साउंड के केस में, ठीक है। और प्लस माइनस वी कर लेते हैं, अगर क्लोज की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, दूर की तरफ जा रहा है तो इनके साइन माइनस हो जाते हैं वी के, ठीक है। ये साउंड का केस है। लेकिन अब देखो यहां पे फॉर्मूला कुछ अलग है, आप तुक्का मार के सही आ जाए तो बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कैसा सही आएगा देखिए इस क्वेश्चन को। ये लाइट का केस है, लाइट सोर्स का केस है, लाइट सोर्स का केस है। तो लाइट सोर्स के केस में डॉपलर इफेक्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, कारण क्या है? क्योंकि साउंड जो है उसके लिए सोर्स और जो ऑब्जर्वर है उसके अलावा भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीडियम का बन जाता है, क्योंकि साउंड जो है वो मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो मीडियम इज इन इटसेल्फ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। लाइट सोर्स के केस में क्या है कि ये फ्री स्पेस में मूव कर सकता है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड द लाइट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो लाइट सोर्स के केस में देखो 3 केसेस बनते हैं, मैं आपको बताऊं। पहला केस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर
is moving perpendicular to the line between him or her and light source. देखो कैसे, अगर हम कहें कि एक सोर्स है, ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग दिस वे, दिस इज द लाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी, light source. Now this is the observer, and if it is moving perpendicular to it, see, if it is moving perpendicular to it with speed v or u, जो भी है, ऑब्जर्वर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है सोर्स के, लाइन ऑफ सोर्स के साथ, उस केस में आवर म्यू इज नथिंग बट म्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर अंडर द रूट. देखो ये वाला फॉर्मूला उन्होंने पूछा है, तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाना चाहिए. या तो आप बताइए डायरेक्ट कि कहाँ मूव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप रैंडमली क्वेश्चन पूछना इज वेरी रॉन्ग थिंग. आपको यही नहीं पता ऑब्जर्वर इज मूविंग, अरे भाई कहाँ मूव कर रहा है, ये तो बताइए कि साथ में आ रहा है कि अपोजिट जा रहा है कि परपेंडिकुलर जा रहा है. अब ये परपेंडिकुलर का केस पूछा हुआ है. देखो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. लेकिन ये बात तब है जब अब ड्रॉप नहीं किया गया तो हमें मानना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है इस पे चैलेंज होना चाहिए था कि जो सोर्स है वो किधर मूव कर रहा है, बताइए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. दूसरा केस अब आप लिख लीजिए, आगे आगे काम आ जाएगा. व्हेन ऑब्जर्वर is moving from the far away from the light source. ठीक है, अब अगर ये ऑब्जर्वर है, सोर्स है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ऑब्जर्वर इज मूविंग इन दिस वे, ओके, इट इज रिसीडिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी म्यू नॉट 1 माइनस वी बाई सी डिवाइड बाई 1 प्लस वी बाई सी. ओके, ये फॉर्मूला होगा अगर रिसीडिंग कर रहा है तो इस केस में आप लिख सकते हो कि दिस म्यू, ऑब्जर्व्ड म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, क्योंकि दूर जा रहा है. एंड थर्ड वन इज ऑब्जर्वर अप्रोचिंग टुवर्ड द सोर्स, ऑब्जर्वर approaching towards the source. In this case mu is equal to mu naught, बस ये अपोजिट हो जाएगा, it will be 1 plus v by c 1 minus v by c. Okay, and in this case you say mu is greater than mu naught. ये तीन केसेस हैं, इन तीन केसेस में से देखो उनको पूछना चाहिए था तो सेकंड और थर्ड में से पूछना चाहिए था पहली चीज तो, या फिर पूछ भी लिया पहले में से तो फिर बताइए कि ऑब्जर्वर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द लाइट सोर्स, तब ये केस आएगा. इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है. बट इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है कि अगर उन्होंने सही टिक नहीं किया या कंफ्यूज हो गए तो एग्जामिनर की सारी गलती है. This is the next question. The reaction positron plus electron turning into gamma is forbidden because. Very easy question. देखो पेयर प्रोडक्शन आपने पढ़ा है, पेयर प्रोडक्शन फॉर्मूला और सॉरी पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस, जहां पे एक गामा ऑफ सफिशिएंट एनर्जी विच इज ग्रेटर देन 1.02 MeV और 1.02 MeV when passes through the field of the nucleus it produces electron plus positron. तो ये होता है पेयर प्रोडक्शन. इसका जो अपोजिट जो केस होता है वो होता है पेयर एनिहिलेशन. पेयर एनिहिलेशन, तो पेयर एनिहिलेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म गामा एंड गामा. ये होता है ट्रू प्रोसेस. तो ये गामा एंड गामा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए प्रोड्यूस होता है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बैलेंस करते हैं. अब यहां पे चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक गामा गिवन है, ओनली
1 गामा इज गिवन, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये चार्ज तो है, देखो चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और गामा पे भी जीरो है, तो यहाँ पे चार्ज तो कंजर्व वाली बात है नहीं, चार्ज तो कंजर्व है लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का जो केस है वो कंजर्व नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये फॉरबिडन है। ठीक है, और इसके लिए पेयर प्रोडक्शन के लिए इसकी मिनिमम एनर्जी 1.02 MeV होनी चाहिए, क्योंकि 0.51 MeV एक रेस्ट मास एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, तो 2 प्रोड्यूस करने हैं तो 1.02 तो कम से कम हो, ज़्यादा होगी तो वो इनके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली जाएगी। ठीक है, तो ये पेयर प्रोडक्शन होता है, इसमें सभी लॉ फॉलो होते हैं। अगर पेयर प्रोडक्शन लॉ हो रहा है तो, और पेयर एनिहिलेशन में 2 गामा बनने चाहिए, तब जाके सारे कंजर्वेशन लॉ फॉलो होंगे, तो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व नहीं है। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सोल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पेपर विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स। ओके, आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताइए। PDF ऑफ दिस पेपर ग्रेविटॉन इंस्टीट्यूट ऐप पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी कंप्लीट PDF, और उसके करेक्ट आंसर्स वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो कोई भी क्यूरी होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मोर रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।